Hello, my dear students. Welcome to the fourth lecture of vector algebra. In the last class, we discussed about the position vector, section formula vectors. Okay, let me quickly revise that the section formula sections. Okay, so here is a vector A, here is a point A, and here is another point B, and the position vector is OA. OA is the position vector. OB is the another position vector of point B. So let this vector be A and this vector be B. And suppose there is a point P which divide the AB in m is to n ratio, is such that AP by PB is equals to m is to n ratio, then the position vector of P, then the OP vector is equals to, or we can say this is P vector, small p vector, is equals to m times B vector plus n times A vector by m plus n. Okay, this is internal division case. Okay, internal division. All right. Then if this point P is divide AB m is to n externally, एक्सटर्नली का क्या केस होता है? सपोज P यहाँ होगा सच दैट AP बाई BP इज इक्वल्स टू M बाई N. ओके, AP बाई BP इज इक्वल्स टू M बाई N. दिस इज इंटरनल डिविजन. And the external division one, and in case of external, if P is a external point on AB, okay, then this OP vector, which is P vector, is equals to m times B vector into minus n times A vector by m minus n. Okay, सो नाउ अभी हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उसी एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर देयर. सो लेट्स डू दिस बंच ऑफ प्रॉब्लम्स. सो प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड दिस लॉट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर. वी हैव टू प्रूव द सम ज्योमेट्रिकल concept using the vector method. The first one is, okay, this is the first one. Yes. Okay, first one. Let us say 1. This is 2, 3, 4. The medians of a triangles are concurrent. What do you mean by concurrent, my dear students? Concurrent means two or more lines, or maybe three or more lines are said to be concurrent if they are intersecting at one point. If they are intersecting at one point, we can say that the lines are concurrent. All right. So let us take a triangle. Consider a triangle. This triangle ABC, suppose triangle ABC, and the position vector of A is, let us say, A vector, and the position vector of B is B vector, and the position vector of C is C vector. Okay, let A is the position vector of point A, and B is the position vector of point B, and C is the position vector of C.
देखो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब दिस इज इनफैक्ट दिस इज ओए वेक्टर। यहाँ कहीं भी ओरिजिन होगा, ओए वेक्टर ए वेक्टर है, ओ बी इज बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इज सी वेक्टर। ओके, ये इसका मतलब ये नहीं कि ए पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। ओके, अब इसका मेडियन ड्रॉ करते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम है, डोंट वरी। ओके, दिस इज द मेडियन ड्रॉ किए, तो ये पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज योर सेंट्रॉइड, वी कैन से सेंट्रॉइड। ये तीनों मेडियंस कॉन्कुरेंट है, मतलब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। हम पहले पढ़े थे कि कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड इस मेडियंस को 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है, डिवाइड इन द 2:1 रेशियो, एंड लेट दिस पॉइंट बी P, लेट दिस पॉइंट बी P। फर्स्ट इस पॉइंट को हम कहते हैं, सपोज दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। लेट अस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ D, E एंड F। देखो CD is a median, CD is a median, what does it mean? D is the midpoint of AB. Okay, D is the midpoint of AB. Okay, D is the midpoint of AB, and E is the midpoint of BC. Similarly, F is the midpoint of AC. Okay, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC. So the position vector of bisection formula, this is D divides AB into 1:1 ratio, E divides BC is to 1:1 ratio, and ये भी 1:1 ratio में डिवाइड किया हुआ है। So what is the position vector of D? हम पढ़े थे the position vector of D will be obviously A vector plus B vector by 2. Position vector of D means OD vector, O से D, OD vector का position vector A plus B by 2 है। Similarly, position vector of, तो इस point this is nothing but A plus B by 2। Similarly, E का position vector है B plus C by 2। F का पोजीशन वेक्टर है A plus C by 2। So position vector of E is your B plus C by 2, and the position vector of F is A plus C by 2, A plus C by 2। And this point P is divide this CD. Point P is divide this CD in 2:1 ratio। ये 2:1 रेशियो में सपोज कहीं ना कहीं पॉइंट है, हमें ये नहीं पता कि ये कॉन्कुरेंट है या कॉन्कुरेंट नहीं है, सिर्फ हम इतना ही देखेंगे लेट दो ठो मीडियन इस पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, BF एक मीडियन है, CD एक मीडियन है जो कि इंटरसेक्ट इसी पॉइंट पे करते हैं। ओके, हम अभी एंश्योर ये करेंगे कि BE लाइन भी P पॉइंट से पास होते हुए जाएगा। द लाइन AE इज ऑल्सो पासिंग थ्रू the point P। okay, so हम सेक्शन फार्मूला अभी पढ़े थे, डिस्कस किए थे कि 2:1 रेशियो भी डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, देन हमारे तक OP वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होगा? द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ओके, सपोज OP वेक्टर को हम कहते हैं P वेक्टर, ओके, एंड P वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? ऑब्वियसली in terms of this C and A plus B, M is 2। ओके, इसको ध्यान से देखो, A पॉइंट है C वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर C वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर A प्लस B बाय 2 है, तो इस पॉइंट 2:1 रेशियो, तो M की वैल्यू 2 है और N की वैल्यू 1 है, तो M इंटू
this position vector plus 1 into this by 2 plus 1. So 2 into a plus b vector by 2 plus c vector by 3. So by 2 plus 1 exactly. So this vector is nothing but a vector plus b vector plus c vector by 3. Okay. Similarly, the point P intersects or divide the point BF in 2:1 रेशियो. सो इसी हिसाब से P वेक्टर क्या हो जाएगा? देखो 2 इंटू a प्लस c बाई 2 प्लस 1 इंटू b वेक्टर by again 2 plus 1. So this is nothing but a plus b plus c vector by 3. Again let's find the point. Okay, let us find the point where points which divide AE in 2:1 रेशियो. अभी एक पॉइंट निकालेंगे जो पॉइंट AE को 2:1 रेशियो में डिवाइड किया है. तो उस पॉइंट सपोज लेट्स से दैट पॉइंट इज R. तो वो पॉइंट क्या होगा? बेसिकली 2 इंटू बी प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू ए वेक्टर बाई 2 प्लस 1. सो 2 कैंसिल हियर ऑल्सो. ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 3. ओके, देखो इन तीनों केस में इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ओके, इन दोनों का तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता था कि ये इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है. और अभी हम देखें इस मीडियन का भी सो a प्लस बी प्लस सी ऑल्सो लाइज इन दिस मीडियन. यही मीडियन पे भी देखो, इसी पॉइंट पे यही पॉइंट को एक पॉइंट 2:2 कौन सा पॉइंट 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी बाई 3. तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3, द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इज लाइज अंडर CD as well as BF as well as A. Okay, so that's why this all the three medians are intersect at point P, and which position vector is a plus b plus c by 3. Okay, देखो क्या लिखेंगे थोड़ा सा. The point having position vector a plus b plus c vector, a vector plus b vector by 3 is lies on the median CD, BF and A. CD, BF and AE. So P is the point of intersection of these three medians. So P is the point of intersection of three medians. So hence medians of a triangle is R concurrents.
are concurrent. Okay, so hence proved. Note कर लो. Moving on to the question number 2. The diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect each other. We have to prove that. So let us consider a parallelogram ABCD. Let's say ABCD. This is A, B, C and D. Let's say A is the position vector of A, this is the position vector of B, and this is the position vector of C is C, and the position vector of D is D. Suppose the position vector of A is A vector, the position vector of B is B vector, the position vector of C is C vector, the position vector of D is D vector. Small d vector. Okay. And what is the diagonal, man? Okay. So here, let me tell you, AB vector is equals to obviously DC vector. These are parallelogram obviously. So AB vector is equals to DC vector. The AB vector means obviously the position vector of B minus position vector of A. So AB vector is nothing but B minus A is equals to position vector of DC is obviously C minus D. So this is one equation. B vector minus A vector is equals to C vector minus D vector. Or we can say AD vector is equals to AD vector. देखो BC vector के साथ सेम है, BC vector के साथ सेम है. देखो पैरेलल है, इक्वल लेंथ की है और डायरेक्शन भी सेम है तो AD vector is equals to BC vector. So we can say the D vector minus A vector is equals to C vector minus B vector. Let's say this is equation 2. And let us find out the midpoint of the diagonal AC. Midpoint of diagonal AC. Midpoint of AC का midpoint क्या होगा? इस पॉइंट को सपोज P मानते हैं, इस पॉइंट को P मानते हैं. Then midpoint of AC will be is equals to A पोजीशन वेक्टर और C पोजीशन वेक्टर के बीच में का मिड पॉइंट. इसका मतलब क्या होगा? C प्लस A बाई 2 होगा और A प्लस C बाई 2. Similarly we can say the midpoint of DB or diagonal BD is obviously B प्लस D बाई 2 होगा. फ्रॉम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 कोई भी इक्वेशन उठा लो, यहाँ से हम लिख सकते हैं. देखो B प्लस D चाहिए हमें, B को इधर ले आओ तो B वेक्टर प्लस D वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस C वेक्टर. ओके, सो B प्लस D की जगह हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 2. सो the midpoint of midpoint of AC and BD are coincide. The midpoint of BD and AC is same. मिड पॉइंट ऑफ BD का जो भी मिड पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट है. और सो अगर मिड पॉइंट सेम है इसका मतलब ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है. सो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर
each other. Okay, hence proved. Question number 3. In any triangle ABC, the point P being on the side BC, if PQ is the resultant vector of AP, PB and PC, then prove that ABQC is a parallelogram. फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. सीन क्या है देखो. फर्स्ट ड्रॉ ए ट्रायंगल. ट्रायंगल है ABC. BC पर एक पॉइंट है P, कहीं पे भी ले लो, एक पॉइंट है P. BC का पॉइंट है P. देन PQ, Q तो कोई नहीं है, Q को हम इमेजिन करें, लेट ये एक पॉइंट है Q. एक पॉइंट सपोज से यहाँ एक Q है. If Q is a point here Q and PQ is the resultant vector of AP, PB and PC, then prove that AB क्या डायग्राम हो रहा है. ABQC इज ए पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है. ओके, दिया क्या है हमें? गिवन ये दिया है कि PQ इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ AP, PB एंड PC. PQ इज द रिजल्टेंट ऑफ AP, PB एंड PC. देखो हमें करना क्या है कि हमें यही करना है कि ABQC को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. टू प्रूव ABQC इज ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम अगर प्रूव करना है, इसका मतलब AB वेक्टर इज इक्वल्स टू CQ वेक्टर, और AB इज पैरेलल टू CQ, यही प्रूव करना है, और BQ इज पैरेलल टू AC, यही प्रूव करना है. प्रूव क्या करना है? AB वेक्टर इज पैरेलल टू CQ वेक्टर एंड BQ वेक्टर इज पैरेलल टू AC वेक्टर. लेट्स से हम देखते हैं कि ये इसका A वेक्टर, इसकी कोई A वेक्टर नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, मैं भी हो जाएगा शायद. देखो सो हमारा गिवन दिया कि PQ रिजल्टेंट है AP, PB और PC का. AP, PB और PC का रिजल्टेंट है. इसका क्या मतलब है कि PQ वेक्टर्स इज इक्वल्स टू AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर, ये तीनों का सम. और AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर, तो AP वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? AB होगा ऑब्वियसली, इज इक्वल्स टू AB वेक्टर हो जाएगा प्लस PC वेक्टर. तो इन दोनों का सम PC है ऑब्वियसली. AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB प्लस PC. दिस इज PQ वेक्टर. Now we can say this is PQ vector minus PC vector is equals to AB vector. PQ मतलब देखो, PQ वेक्टर मतलब ये वेक्टर है, PC वेक्टर मतलब आपका यही वेक्टर है. तो इसका मतलब देखो, इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखो. सी द ट्रायंगल, कंसीडर द ट्रायंगल PCQ को देखो, ट्रायंगल PCQ को देखो. तो PC वेक्टर प्लस CQ वेक्टर इज इक्वल्स टू PQ वेक्टर हो रहा है कि नहीं? ऑब्वियसली PQ वेक्टर हो रहा है. तो ऑब्वियसली वी कैन राइट PQ माइनस PC. तो PQ वेक्टर माइनस PC वेक्टर इज इक्वल टू CQ वेक्टर. सो वी कैन राइट PQ वेक्टर
माइनस हमें पी क्यू वैक्टर माइनस पी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर मिला। सो पी क्यू माइनस क्यू सी को हम सी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वैक्टर। तो सी क्यू वैक्टर और ए बी वैक्टर सेम है, इसका मतलब ऑब्वियसली ए बी पैरेलल टू सी क्यू है। द लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी क्यू। देन उसका अलग पार्ट, दूसरा पार्ट फिर वही कंसिडर करो कि पी क्यू इज इक्वल्स टू again consider PQ is equals to AP plus PB plus PC. Okay, consider PQ is equals to AP plus PB plus PC. तो अभी AP वेक्टर प्लस पहले PC को लिखो, उसके बाद PB को लिखो। AP प्लस PC क्या होगा? AP वेक्टर प्लस PC वेक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली दैट्स इक्वल्स टू AC वेक्टर प्लस PB वेक्टर। इसका मतलब यही है कि PQ वेक्टर माइनस PB वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर। देखो अभी फिर से देखो इस ट्रायंगल को भी देखो, PQ PB वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल को देखो ध्यान से। इस ट्रायंगल को देखो, पी क्यू प्लस अगर क्यू बी करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू बी करेंगे तो पी बी होगा। पी क्यू प्लस क्यू बी करेंगे तो क्या होगा? पी बी मिलेगा हमें। तो पी क्यू माइनस पी बी अगर होगा तो ऑब्वियसली क्या मिल जाएगा हमें? दैट इज इक्वल्स टू बी क्यू। ऑब्वियसली बी क्यू वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है, कंसिडर करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान से इधर, पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू बी वेक्टर अगर करेंगे, क्यू बी, अगर पी क्यू ओके देखो पी बी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू पी बी प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू होगा। तो बी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा? पी क्यू वेक्टर माइनस पी बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? तो पी क्यू माइनस पी बी की जगह तुम क्या लिख सकते हैं? हम बी क्यू वेक्टर लिख सकते हैं। बी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। सो हेंस बी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। सो our AB parallel to CQ and BQ parallel to AC. So ABQC is a parallelogram. Hence proved. All right. So pause the video to note it down. Moving on to question number 4. And the question is, in a parallelogram, the line joining the vertex to the midpoint of an opposite side ट्राइसेक्ट द अदर डायगोनल। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ए पैरेललोग्राम। ओके, A B C D and let the position vector of the point A is A vector, this is B vector, this is C vector and this is your D vector. So क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन यही बोल रहा है कि the line joining to a vertex to midpoint of an opposite side, ये आपका पॉइंट है B। यहाँ से हम दो ऑपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट का ड्रॉ करेंगे। तो ये एक मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट है। तो ये जो दोनों साइड्स हैं, ये जो दोनों मिड पॉइंट है, ये जो लाइन है, दे आर ट्राइसेक्ट
द अदर डायगोनल, ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्ट मतलब दिस इज डिवाइड दिस डायगोनल इनटू 3 इक्वल पार्ट, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ये हमें प्रूव करना है। ओके, हेंस दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये सब तुम लिखना थोड़ा सा पहले जितने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ था। फर्स्ट देखो, ए बी वेक्टर्स ऑब्वियसली इज इक्वल्स टू डी सी वेक्टर्स, सो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर्स इज इक्वल्स टू सी वेक्टर्स माइनस डी वेक्टर्स, और वी कैन से बी प्लस डी वेक्टर्स इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, b plus d is equal to similarly b plus d is equal to c plus a, और we can say ab और dc सेम हुए। ऐसे सिमिलरली हम ad वेक्टर्स इज इक्वल्स टू bc वेक्टर बोल सकते हैं, और ये भी d माइनस a है, ये b माइनस c है। d माइनस a, d वेक्टर माइनस a वेक्टर, और दिस इज b c वेक्टर माइनस b vector, तो we can write d vectors plus c vectors is equals to d vector plus c vector is equals to b plus d vector plus b vector सेम है, दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम। d vector plus b vector is equals to c vector plus a vector, तो यही आपका एक इक्वेशन बना हुआ है कि b plus d is equal to c plus a। इसको नहीं लिखने से क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन अभी कंसिडर दिस इज ए मिड पॉइंट, दिस लेट दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सॉरी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इज हाफ मिड पॉइंट है, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2, दिस इज सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑब्वियसली ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2, ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2। समझ में आया इतना? देन नाउ कंसीडर, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं, बाप रे, ओहो, ओके। सो बी सी डी एक ट्रायंगल है ऑब्वियसली, एंड इस पॉइंट को पी क्यू आर बोलते हैं। बी सी डी एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी डी बी पी इज ए मेडियन, बी पी इज ए मेडियन एंड सी आर भी एक मेडियन है, सी आर इज ए ऑल्सो मेडियन। ये क्यों मेडियन है, दिस बाइसेक्ट इंटरसेक्ट इज अदर, बाइसेक्ट सॉरी द डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, सो आर इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, R is the midpoint of BD, R का कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। और दो पॉइंट है, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ M पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ M पॉइंट M क्या हो जाएगा, ये मेडियन है, ये दो ठो मेडियन इंटरसेक्ट करने का सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मतलब 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो मीन्स 2 into c plus d vector by 2 plus 1 into b vector by 2 plus 1, that is b plus c plus d by 3, that is b plus c plus d by 3। ओके, ये m एक पॉइंट है ऑन द लाइन AC, ये इतना हमें मिल गया कि m इज ए पॉइंट ऑन द लाइन AC। ओके, फिर AC को हम क्या करते हैं, AC को करते हैं ट्राइसेक्ट, AC को करते हैं इस पॉइंट को निकालते हैं, इस पॉइंट अगर इफ M इज ट्राइसेक्टिंग दिस AC एंड M मस्ट बी डिवाइडेड 2:1 रेशियो, तो हम अभी क्या करते हैं कि AC में जो भी पॉइंट है 2:1 रेशियो में जो भी पॉइंट डिवाइड किया है AC को, उसी पॉइंट को निकाल देंगे। ओके, उसी पॉइंट को निकाल देंगे। द पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ point which divide AC in 2:1 रेशियो, तो क्या हो जाएगा 2 into C वेक्टर प्लस 1 into A वेक्टर बाय 2 हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 2C प्लस A बाय 2 प्लस 1 बाय 3।
ओके 2c प्लस 1 प्लस 3 एंड इस c को हम लिख सकते हैं कि तो c प्लस 2c है ना, c प्लस a, और c प्लस a की वैल्यू कितना है, c प्लस a का वैल्यू है एंड c प्लस a इज b प्लस t, c प्लस a इज b प्लस t, तो c वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस d वेक्टर बाय 3 ओके। सो ये देखो m का पोजीशन वेक्टर है b प्लस c प्लस d बाई 3 विच इज ट्राइसेक्ट द डायगोनल SC। सो m ट्राइसेक्ट और m ट्राइसेक्ट द लाइन और द डायगोनल AC, or we can say similarly you can prove, we can prove it for n, for the point n and hence proof। n के लिए ऐसे इसी केस में जैसे ही एग्जिट लीजिए n के लिए भी उसी के लिए केस में कर सकते हैं, लेकिन ये m का पार्ट, ये आधा पार्ट डू योरसेल्फ, आप खुद से करना। ऑलराइट, डू योरसेल्फ। सो इसको नोट कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब पहले हम डिस्कस किए थे प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, एक स्केलर के साथ एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस किए थे। नाउ दो वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक हमारा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम प्यार से डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ओके, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्केलर प्रोडक्ट। This is also called dot product. The scalar product of two vectors, let's say vector A and B is defined as ओके, ए वेक्टर डॉट दिया जाता है बीच में, डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, where theta is the angle between a vector and b vector. Theta is the angle between a vector and b vector. Let's say this is your a vector and this is your b vector, and the angle between these two is theta. Okay, सो हमेशा दो वेक्टर के बीच में दो ठो एंगल आ जाएगा, एक ये एंगल और एक ये 360 माइनस थीटा वाला टाइप का एंगल। तो हमेशा इसी केस में वी आर टेकिंग द स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऑलवेज द स्मॉलर एक्यूट एंगल को लिया जाता है। देन सो हम देखेंगे ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा है। सो ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, एक रियल नंबर है, बी का मैग्नीट्यूड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक रियल नंबर है, और कॉस थीटा भी एक रियल नंबर है। तो ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो हमेशा स्केलर एक रियल नंबर आता है। सो द रिजल्ट ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट
the result of a dot product is always a scalar quantity, a scalar quantity, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर नहीं आएगा, वो स्केलर हो जाएगा, दैट विल बी ए स्केलर। ओके, देन अगर हम b डॉट a निकालेंगे तो ये भी b का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो इवेंचुअली होता क्या है कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a होता है, तो इट इज कम्यूटेटिव। सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय कम्यूटेटिव? if we are going to change the order, a dot b is equals to b dot a, a dot b is equals to b dot a। देन उसका केस थोड़ा देखते हैं कि फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b वेक्टर क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो 0 है, कॉस थीटा अगर 0 तो ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना है 1। सो दिस इज a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली a डॉट b इज इक्वल्स टू, ऐसे ए बी कॉस थीटा भी कहा जाता है, where a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ओके, सो इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, सो a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी होता है। ओके, ऐसे मैग्नीट्यूड का साइन को थोड़ा सा आराम से सिंपली लिखने के लिए ऐसे ए बी का यूज़ किया जाता है, लेकिन बुक्स में इसको बोल्ड लेटर में लिखा जाता है, बोल्ड में थोड़ा सा डार्क लिखा जाता है। ओके, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी, बट दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसको भी ऐसे मैग्नीट्यूड को ऐसे बोल्ड में थोड़ा सा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि जो 3 ठो यूनिट वेक्टर होते हैं, 3 ठो कंपोनेंट होते हैं along the coordinate axis। एक है तुम्हारा x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इसकी along के यूनिट वेक्टर को i कैप कहा जाता है, इसके along के यूनिट वेक्टर को हम j कैप कहा जाता है, इसके along के यूनिट वेक्टर को k कैप कहा जाता है। ओके, सो i कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर along the x axis, j cap is the unit vector along the y axis and k cap is the unit vector along the z axis। If we are going to find I cap dot I cap, तो what does it mean? I का मैग्नीट्यूड इंटू I का मैग्नीट्यूड इंटू cos x एक्सिस और x एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा 0, तो cos 0 कितना 1 और इसका यूनिट वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। सो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, सो वी कैन इवेंचुअली से आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 1। इन सबकी वैल्यू कितनी होती है 1, सबकी वैल्यू 1 होता है। Now see a vector dot a vector. What is a vector dot a vector? A vector dot a vector is eventually a vector का magnitude into a vector का magnitude into cos theta. And what is the angle between a and a? The angle between a and a must be 0. So this will be a vector का square into cos 0 तो 1. So a dot a is equals to magnitude of a का square. So eventually we can write, if there is a vector, there is a plus b is a vector
द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कैन बी रिटन एट ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी वेक्टर। Then and your next point is ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड केस में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और पाई बाई 2। इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 देन ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री और कॉस पाई बाई 2 लेट्स से। एंड व्हाट इज कॉस पाई बाई 2? कॉस पाई बाई 2 इज 0. So eventually A dot B is equals to 0 if theta is equals to pi by 2. A dot B is equal to 0 if theta is equal to pi by 2. So if A dot B is equals to 0, then there are two possibilities. The first one is either A vector or B vector इस जीरो वेक्टर, इन दोनों में से किसी एक जीरो वेक्टर हो सकता है और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वी कैन से इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री एंड वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाता है। ऑर्थोगोनल मीन्स जो अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर्स हैं, दो वेक्टर अगर ऐसे परपेंडिकुलर हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहा जाता है। सिमिलरली आई डॉट जे अगर देखेंगे, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस आई मतलब एक्स एक्सिस, वाई मतलब सॉरी आई एक्स एक्सिस, जे वाई एक्सिस, तो कॉस पाई बाई 2 इवेंचुअली दिस इज 0. सो आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू आई डॉट के। ये सब अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के, दिस ऑल आर 0, दिस ऑल आर 0. आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के ये हमेशा 0 होते हैं। सो नाउ हमें पता है कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। सो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ए डॉट बी बाय ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ओके, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू cos theta is equals to a dot b. So we can write cos theta is equals to dot product of two vector dot product of two vector by product of their magnitudes by product of their
मैग्नीट्यूड्स। ओके, सो मैं भी, तुम सोचते हो कि अगर कॉस थीटा हमें नहीं पता तो डॉट प्रोडक्ट कैसे पता होगा। ठीक है, देखो, इफ ए एंड बी आर गिवन इन द component form, if a is equals to a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap and b vector is equals to a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap plus c2 k cap, then your a dot b is equals to, we can write a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap dot a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap, so is equals to what happened here, a1 तो i के साथ मल्टीप्लाई होने से कुछ i डॉट आई क्या होता है, i डॉट आई होता है हमारा 1, बट i डॉट जे और i डॉट के तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। सो a डॉट b इज इक्वल्स टू a1 a2, sorry, a dot b is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। so we can write cos theta is equals to, और लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे, ये तो फॉर्मूला है आपका, देन यहाँ से अगर देखेंगे a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। so cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। अगर a वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap होगा, then what is the magnitude of a? The magnitude of a will be a1 square plus b1 square plus c1 square का अंडर रूट। and what is the magnitude of b? a2 square plus b2 square plus c2 square का अंडर रूट। okay, so cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by, we can write a1 square plus b1 square plus c1 square times a2 square plus b2 square plus c2 square। nice, all right. oh. So this is the formula for, we can write cos theta. This is also formula for cos theta. This is in the product form, और ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है लेकिन कंपोनेंट वाइज के फॉर्म में है। Where we can say here a1 b1 and c1 are the DRS of a, a2 b2 c2 are the DRS of b। so cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by a का मैग्नीट्यूड दैट इज a1 स्क्वायर प्लस b1 प्लस c1 स्क्वायर। मतलब दो वेक्टर का अगर DRS भी तुम्हें दिया है, तो दो वेक्टर का अगर DRS दिया है तो उसका cos थीटा उसी DRS का प्रोडक्ट के फॉर्म हो जाएगा, उसी DRS का माने प्रोडक्ट, मतलब a1 a2, अगर a1 b1 c1 आर द DRS of one a vector, a2 b2 c2 are the DRS of another vector, and a dot b will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, and the cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by a1 square plus b1 plus c1 square का root over into a2 square plus b2 square plus c2 square का root over। then we can, this is commutative, dot product is commutative। okay, properties देख लेते हैं, properties, dot product is commutative। commutative means a dot b is equals to b dot a होगा। it is distributive, it is distributive in nature। what do you mean by distributive? distributive, so a vector dot b plus c vector is equals to a dot b plus a dot c, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है।
A dot k times b vector is equals to, we can write k times a1 dot a dot b. ऐसे कांस्टेंट अगर कोई भी मल्टीप्लाई हो तो बाहर आ सकता है, उसे हम मल्टीप्लाई ऐसे बाहर में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आई होप इसको तुम नोट करते जा रहे हो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लेट्स से दिस इज योर वेक्टर b, ओके, लेट्स से दिस इज द वेक्टर a, सपोज a एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है b, दिस एंगल इज थीटा, एंगल इज थीटा। सो फर्स्ट एक प्रोजेक्शन है, हम अगर वी आर गोइंग टू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंड पॉइंट, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट के परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। लेट दिस पॉइंट बी m एंड दिस इज o, सो OM इज योर, OM इज योर, इसका लेंथ क्या होगा a पॉइंट, दिस इज b, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ OB? OB का जो लेंथ है इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, सो ऑब्वियसली OM इज इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, b का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा, इसका लेंथ है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, OM इज द प्रोजेक्शन, OM is the projection of B vector on A vector. B vector का प्रोजेक्शन on A vector is B का मॉडुलस into cos theta. So we can say projection of B on A इज इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला एक है प्रोजेक्शन का, तो b का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा वी हैव आवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, सो b का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इवेंचुअली कैंसल, सो इज इक्वल्स टू a डॉट b बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो प्रोजेक्शन b ऑन a, मतलब जिस वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू a डॉट b बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a डॉट b बाय a। सो वी ऑल्सो कॉल्ड द a डॉट b इज इक्वल्स टू a इंटू b cos theta, और ऑल्सो वी ऑल्सो कॉल्ड b इंटू a cos theta. This is where a is the magnitude of a and b is the magnitude of b vector. देखो ये जो है एक स्केलर प्रोजेक्शन है, दिस इज योर स्केलर प्रोजेक्शन, मतलब ये OM का लेंथ है b cos थीटा, और वी कैन से a डॉट b बाई a वेक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ OM। सो वेक्टर प्रोजेक्शन, सो OM वेक्टर की अगर बात करेंगे, सो ये OM का लेंथ है, मतलब OM का लेंथ इनटू इसका यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर कौन सा, इस डायरेक्शन में वेक्टर a है, तो a का यूनिट वेक्टर कौन होगा, a का यूनिट वेक्टर होगा आपका a वेक्टर बाय a का मैग्नीट्यूड। सो OM इज नथिंग बट b cos थीटा, OM इज नथिंग बट b cos थीटा, और इवेंचुअली a डॉट b बाय a, सो वी कैन से a डॉट b बाय वेक्टर a।
So into A vector by A vector, A का मैग्नीट्यूड. So this is equals to A dot B by A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर into A vector. So this is the vector projection. This is the vector projection of B on A, B vector on A vector. उसका वेक्टर प्रोजेक्शन है A डॉट बी बाई ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, A डॉट बी बाई ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर. मतलब ये OM वेक्टर निकलेगा, ये OM वेक्टर का फॉर्म है और OM का जो मैग्नीट्यूड जो लेंथ है वो A डॉट बी बाई ए डॉट बी बाई ए. सिंपल. उसका फिजिकली डॉट प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है फिजिकली? तो देखो किसी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू जनरली होता है एफ डॉट डी. वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी. तो अगर हम उसको फोर्स देखो अप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा. मतलब जिस केस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, उसका डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम है तो एंगल 0 होगा. तो उस केस में वर्क डन आपका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क डन. ओके, अगर हम सीधा अप्लाई करेंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन पे हो रहा है, इसी डायरेक्शन पे होगा. अगर हम सीधा अप्लाई करें कोई डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल, मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे फोर्स दे रहे हैं, ऐसे फोर्स दे रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होगा, मतलब काम वर्क डन इज 0. अगर हम ऐसे फोर्स दे रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो सेम है तो यहाँ वर्क डन मैक्सिमम होगा. अगर हम किसी ऐसे फोर्स देंगे तो ये मूव तो करेगा, मतलब ना सीधा ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर फोर्स देंगे, एक एंगल से फोर्स देंगे तो ये मूव करेगा लेकिन उतना नहीं. ठीक है. सो डिपेंड करेगा कॉस थीटा के ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना होगा. ओके, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना. और भी फिजिक्स में तुम पढ़े होगे डॉट प्रोडक्ट का बहुत सारे यूज होगा. ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं नहीं तो. So here are few questions. So find A vector and B vector, A dot B, sorry, A dot B and angle between them. Here A is given 2 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap and B is given, B vector is 2 I cap minus 3 j cap minus 5 k cap. Second इसका सेकंड भी है, A equals to I minus J, B equal to J plus K. तो वेरी सिंपल है. तो फर्स्ट क्वेश्चन, A वेक्टर दिया है 2 I cap माइनस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप और बी वेक्टर दिया है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप. सो ए डॉट बी हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू माइनस 5. सो 4 प्लस 9 माइनस 30 विच इवेंचुअली 30 minus 13 is minus 17. This is A dot B. Let me check again. 4 plus 9 minus 30. Okay, great. And the formula for cos theta is A dot B by A का magnitude into B का magnitude. और eventually what is the magnitude of A? A डॉट बी तो हमें मिल गया -17 बाय A का मैग्नीट्यूड इज ऑब्वियसली 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर. सो -17 बाय 4 प्लस 9 13 प्लस 36 इज हाउ मेनी गाइस 49 का अंडर रूट. बहुत अच्छा. और एक 4 प्लस 9 13 प्लस 25 दिस
this is 25 plus 13 is 38 अंडर रूट, प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ये, तो दिस इज सिंपली 7 आ गया। सो -17 बाय 7 इंटू रूट 38 कितना, बस रूट 38, 7 इंटू रूट 38 चेक कर लेते हैं। 4 + 9 13, 13 + 25 रूट 38, ग्रेट। सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -17 बाय 7 रूट 38। ओके, सेकेंड क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। तो ए डॉट बी तो यहाँ दिख रहा है, देखो 1 आई इंटू इसका आई कंपोनेंट बिल्कुल कोई नहीं है 0, -1 इंटू जे कंपोनेंट मतलब -1 इंटू 1 0 इंटू के इज 0, सो दिस इज -1। ए डॉट बी कितना आ गया -1, और ए का मैग्नीट्यूड है इस √2 इज इक्वल्स टू बी का भी मैग्नीट्यूड √2 ही है। सो कॉस थीटा इज योर -1 बाय √2 इंटू √2, सो -1/2। सो -1/2 कब होता है यार, -1/2 when थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू केस में 120 डिग्री। सेकेंड वाला पार्ट जल्दी हो गया, कर लिया। अभी हम थर्ड वाला एक करते हैं। थर्ड वाले केस में फाइंड लैम्बडा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन ऑब्वियसली if A is perpendicular to B vector, obviously A dot B is equals to 0. A dot B is equals to 0. And A कितना दिया है बच्चों, A दे दिया है हमें I कैप प्लस J कैप प्लस लैम्बडा K कैप, या K मिसिंग है, और B वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 I कैप माइनस 3 K कैप। सो A डॉट B कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 0 प्लस लैम्बडा इंटू -3, सो इट विल बी 4 -3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4/3। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 4/3। समझ में आया कि नहीं, बस बहुत अच्छा। चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 4, जे यहाँ 0 है और लैम्बडा इंटू -3, ग्रेट। देन सेकेंड वन खुद कर लोगे, बस ए दिया है यहाँ, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में दिया है। दिस इज 6 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 3 K कैप, और बी वेक्टर दे दिया है आपको I कैप माइनस 4 J कैप प्लस लैम्बडा K कैप। सो ए डॉट बी अगर निकालोगे तो 6 माइनस दिस इज 8 आई थिंक, एंड दिस इज -3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। सो इवेंचुअली 6 माइनस 8 इस -2 उधर जाएगा, तो ये लैम्बडा इज इक्वल टू -2/3 आई थिंक। चेक कर लो थोड़ा सा, 6 इंटू 1 6 -8 -3 लैम्बडा is equals to 0, so 3 lambda is equals to -2 lambda is equal to -2/3. Great. Okay, that's it for today's class. In the next class we are going to discuss some more types of problem about this dot product. So bye bye, take care, see you in the next class.